Hello everyone and welcome to your YouTube channel CS Ansar. Today we have with us CS Sonia Arora. She will be discussing the concept of principal agent relationship under GST. Over to you Sonia please. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Today I am going to discuss the topic principal agent relationship in the GST. The topic it needs so many of the clarities. Reason being that's why the government have come up with a circular also because there is ambiguity in the principal relationship in the GST. So before that, you must know in the supply in GST, the whole concept depend upon supply. That is the taxable event under GST is the supply, and for the supply, the parameters are that the supply should be in the course of furtherance of business and for consideration of goods and services. So the main constituent is supply should constitute consideration also. So the major point, hit point is schedule 1. They cover all the activities even they will be where without consideration they are considered as supply. So those are four activities. Basically, first one is the permanent transfer for disposal. There they are putting stress on permanent transfer and not a temporary transfer. As example, you are giving laptop to the employee for service. They are not covered under this. Second one is the supply of goods and services between related and distinct. Both person have been covered in this point number second. And the third one, the today topic is supply of goods. Even though there will be no consideration, that is the main parameter of a supply, even then it will hit GST. So for supply of goods, we will be covering in this case whether all agents are covered under Schedule 1. Is there any difference between agent and independent contractor? What will be the aggregate turnover for principal agent? And what will be the value for these transactions? These all points will be covered in the today's session. And for the agent, I will give special emphasis for the agriculture agent, Kacha and Pakka Artiya also. So before that, you have to take into consideration certain definitions. The first definition is section 25 of subsection CGST Act means agent means a person. It means that is it is a exhaustive definition and not a inclusive. But another way is including a factor, broker, commission agent, Artiya, Del Credit agent, auctioneer, or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services on behalf of another. So for an agent, the main emphasis is on behalf of another. So under the contract all act also under section 182, agent means a person who is doing something on behalf of another. So whether a person is wearing a representative hat or not is very much important. And the second definition is the principal. Principal have been in the GST discussed for two contests. First one is for job worker and the second one is for the agent. And for here, I am discussing principal in respect of an agent. A principal means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipts of goods or services or both. Now, the supplier, section 2, subsection 105 of the Act. Why I am giving all the definitions? Because they have a linkage. So before doing all the clarity about the principal and relationship, agent relationship, you must be aware about all the definition. Why they have written in the supplier definition, supplier in relation to any goods or services as a person supplying goods or both, and shall include an agent. So agent is also covered under the definition of supplier. And the section 24 subsection 7, the compulsory, they required for the compulsory registration. You all know the section 24 is for the compulsory registration. It covered n number of cases, one for interstate supply. And now I am discussing and pitching only subclause 7, that is person who make a taxable supply of goods. So the main is the supply should be of a
taxable goods. If you are dealing in exempted goods, then you are not required to get compulsory registration. Or on behalf of another taxable person. Another taxable person means the person on whom behalf you are doing. It should be principal, should be a taxable person. That's why government have come up with corrigendum of circular number 57. If your principal is not a taxable one, there is a difference between a person, a registered person, and a taxable person under GST. A registered person means a person who got registration, but a taxable person means who is liable to get registered. It covers both registered as well as who is liable to get registered. Now, here I am going to discuss very important thing, that is, in the case of agriculture agent, the agriculture agent, the farmer is not at all a taxable person. So if a farmer is supplying wheat, paddy, then he to the agent, in that case commission agent is not required to get compulsory registration. So for the compulsory registration, these 2 points we have to take into consideration. The goods, they are taxable one, and the second, from whom we are taking that goods, they should also be a taxable a person and not from the exempted. This is the only reason all the agent who are dealing in the agriculture produce, they are exempted from compulsory registration. Now, coming to the main point, topic of the today, that is supply of goods, where it will fall under the ambit of GST. So the schedule 1, para 3 talk about supply of goods and not of services. So don't confuse with the services one, ki whether whenever there will be a no consideration, it will be hitting GST. It will hit GST only when there is a supply of goods. In the case of services, consideration is must. And for supply of goods, they have covered 2 points. Firstly, there is a transfer of principal to agent. And secondly, when the agent receives goods on behalf of principal and then move it to the principal, and whether that movement, that outward supply will hit GST or not, this is the main point, or this is the ambiguity which is everybody is confused ki whether every agent relationship is covered, whether every movement of goods from the principal to agent or either agent to the principal will cover under GST. So now first one is when a principal supply the goods to his agent and the agent undertaking on behalf of the principal is a very much important. In both the scenario, in the 2 cases, undertaking on behalf means the agent should or must have wearing a representative hat. Now this is only the reason circular number 57 come into the picture. Now, if you take the example, A is an agent and is located in Delhi, and B is a manufacturer and is located in Punjab, and A agree to purchase certain goods from Delhi on behalf of Mr. B every month and supply the same to Mr. B. In the aforesaid case, जो दिल्ली का पर्सन परचेजेस कर रहा है, आई एम इन द पंजाब, मेरे बिहाफ पे वहां पे परचेज कर रहा है एंड देन वो मेरे को मूव कर रहा है, तो क्या इस सिचुएशन पे ये सप्लाई माना जाएगा? उस टाइम पे ये विदाउट कंसीडरेशन है. दिस इज द फर्स्ट केस. आई एम गोइंग टू डिस्कस 4 एग्जांपल विद यू एंड देन गिविंग यू रेफरेंस टू द 50 सर्कुलर नंबर 57 की क्या केसेस हैं. फर्स्ट वन इज seller in the Gujarat, purchaser, I am having an agent in Mumbai and I am supplying goods to the agent of Mumbai for further sale. So at this moment, whether GST will be levied or not. Main point is, solution is, who is making the invoice? I am going to give you the thumb rule over there.
Just set aside all your doubts. First of all, see whether it's a case of goods or a services. If it's a case of a services, it is out of schedule number 1, para 3. Now, if it's of good, then schedule 1, para 3 come into the picture. And then we have to see whether that agent is wearing a representative hat. Now, how we came to know that he is wearing a representative hat? The simple is the invoicing pattern. Whether he is given the title, have the right to transfer the title. If he is transferring, invoicing is done by principal, then he is an agent. But if the invoicing is done by himself, he is taking in his own name, then he is not a agent. Same is the case. Second illustration, Mr. A, an artist, he appoint an auctioneer to auction his painting, and the B arranges for the auction. ए पर्सन ने सिर्फ एक बी ऑक्शनर को बोला है कि मेरी ऑक्शन अरेंज करनी है और आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल बिडर को. अब जो बी ऑक्शनर है वो सिर्फ अपने अरेंज कर रहा है, उससे गुड्स रिसीव नहीं कर रहा, पेंटिंग रिसीव नहीं की है. फर्स्ट केस. अगर मैं सेकेंडली बोलूं, इन्होंने सर्व से पेंटिंग ले ली है अपने पास एंड देन ही इज अरेंजिंग, तब भी क्या केस में डिफरेंस आएगा? इन दैट सिनेरियो द पिचिंग पॉइंट इज द इनवॉइस और कुछ भी नहीं है. तो द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय बी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए बट इन हिज ओन नेम. तो आपने ये देखना है जब फर्दर इनवॉइसिंग हो रही है वो किसके नाम पे हो रही है. नाउ हियर फर्दर इनवॉइसिंग इज डन बाय द एजेंट इन हिज own name. When he is doing it in his own name, in that case he fall under the ambit of schedule 1 and he will be considered as our agent. But if he is not making invoice in his own name and simply referring the client or arranging the auction, in that case he will not be considered as a agent. Same is the case. A appoint B to procure certain goods from the market and B identify. आप A हैं, let me suppose I am a B and you give me one task कि मैम मेरे गुड्स को ये अरेंज कर दो कि मैं कहाँ से परचेज करूं. I provide a list of these supplier कि these यहाँ पे जाएं, उनको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया सप्लायर को और सप्लायर को बोला वो डायरेक्टली आपको इनवॉइस इशू करे. तो पहले एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी ओनली वन पिचिंग पॉइंट इज देयर, दैट इज इनवॉइस. यहाँ पे इनवॉइस डायरेक्टली आपके नाम पे आ रही है, एजेंट के नाम पे नहीं आ रही है. अगर मैं इनवॉइसिंग अपने नाम पे लेती हूँ देन आई विल बी कंसिडर्ड एज योर एजेंट. बट अगर मैं आपके नाम पे इनवॉइस ले रही हूँ तो देन आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर agent. Same is the case with the agriculture produce. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बताना चाह रही हूँ. रीजन बिंग इसके दो नोटिफिकेशन हिट करेंगी. मिस्टर ए है, वो सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ मिस्टर बी हु इज अ कमीशन एजेंट. अब कमीशन एजेंट के केसेस में आपको पता है जितने भी आरटीए होते हैं दे क्या करते हैं, दे buy and sell the agriculture produce on behalf of agriculture farmer where they charge a commission. अब ये जो कमीशन ले रहे हैं, the commission agent हैं, as they are dealing in the agriculture produce and agriculture produce is exempted. तो यहाँ पे कौन सी हमारी 23 सेक्शन के अंदर मैं बात कर रही हूँ आपकी, हमें बताया गया था जो ओवररूल करता है सेक्शन 24 को, क्योंकि अकेला हमारा टॉपिक यही नहीं है कि ये प्रिंसिपल एजेंट है कि नहीं है. मेन पॉइंट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी लेनी है इफ यू आर एजेंट. तो क्या ये सारे जो एग्रीकल्चर गुड्स में डील कर रहे हैं पर्सन, इनको रजिस्ट्रेशन लेनी है कि नहीं लेनी है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मैं आपको बता दूं, जो पर्सन डील कर रहे हैं सेक्शन 23 में क्लियर कट एग्जम्पशन दी गई थी एंड सेक्शन 23 ओवरऑल सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उसमें बोला है इफ यू आर डीलिंग इन एग्जम्प्टेड गुड्स, फुली एग्जम्प्टेड गुड्स
and you are not at all a taxable person, आपकी कोई और टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं है, तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। इसीलिए अगर ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डील करते हैं इनवॉइसिंग पैटर्न से ऊपर भी जाके, अगर दो तरह के केस होंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, क्या होगा, एक मैं फार्मर से गुड्स ले रही हूँ, ठीक है, अपनी इनवॉइस दे रही हूँ और आगे सेल कर रही हूँ। अगर मैंने अपनी इनवॉइस कर दी तो डेफिनेटली मैं शेड्यूल 1 में हिट कर गई, बट शेड्यूल 1 में हिट कर गई हूँ बट स्टिल मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, बिकॉज नोटिफिकेशन 12/2017 के अंडर दे हैव एग्जम्प्टेड द सर्विसेज ऑफ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे याद रखना कि कोई कमीशन एजेंट जो सप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, the agriculture who supplies produce out of the cultivation of land is not liable for registration, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया है। और now giving reference to circular number 5731/2018, यहाँ पे बड़ा इजी वे में मैंने बोल दिया कि प्रिंसिपल एजेंट, बट इन दिस कमर्शियल वर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि प्रिंसिपल एजेंट की डेफिनेशन के लिए फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ दो चीजों पे बोल रही हूँ, यू हैव टू लुक इनटू द इनवॉइसिंग पैटर्न एंड द अथॉरिटी, एंड बेसिकली अथॉरिटी ऑटोमेटिकली पास इफ यू आर हैविंग द अथॉरिटी टू इशू इनवॉइस इन योर नेम। आपके पास अथॉरिटी है टाइटल को ट्रांसफर करने की, दैट्स व्हाई यू आर इशूइंग इनवॉइसेस इन योर नेम, एंड दिस इज द ओनली रीजन इन द डेफिनेशन ऑफ अ सप्लायर दे हैव कवर्ड एजेंट आल्सो। So the crucial point is only you have to see invoicing pattern. If you are issuing invoice in your own name, agent is doing invoicing in his own name, only then they will come under the ambit of principal agent relationship. Otherwise they are not. अब हमें लगता है कि अच्छा इनवॉइसिंग पैटर्न है तो ये तो डिटरमिन होगा जब मर्जी, discretion of the agent, it's not that, it will be determined by a flow of transaction and not flexible in the hands of the agent. So it can be concluded 2 points. Firstly, when goods supplied by principal to agent without consideration, here further invoice, I am talking about the further invoice in the first case, जब principal ने agent को transfer किए हैं, तो agent जब आगे transfer करता है, क्या वो अपने नाम पे ट्रांसफर करता है? अगर वो अपने नाम पे आगे बिल इशू करता है देन शेड्यूल 1 विल बी एप्लीकेबल, बट अगर फर्दर इनवॉइसिंग इशूड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, तो अगर और ध्यान से सोचें इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल की बात है तो दैट विल कम लाइक जस्ट अ माय ब्रांच। तो अगर माय ब्रांच है तो इस पे ये वो एजेंट वाली चीज नहीं है। यू डोंट हैव टू सी द कि हाउ द पेमेंट इज डन, मेरा एम्प्लॉय है, मेरा एजेंट है, मैं उसको कैसे सैलरी पे कर रही हूँ, परसेंटेज पे कर रही हूँ, फिक्स्ड अमाउंट पे कर रही हूँ, दीज आर नॉट द क्राइटेरिया टू डिटरमिन कि वेदर ही इज माय एजेंट और नॉट। द एजेंट वेदर इज योर एजेंट और नॉट डिपेंड अपॉन द इनवॉइसिंग पैटर्न। और अगर शेड्यूल 1 एप्लीकेबल होता है only then valuation rule will be hitting, that is valuation as per 29 will be done, and he is liable to get compulsory registration under section 24 subsection 7. And the second scenario is good received, because the second thing is we are discussing when there is a movement from agent to the principal. जब agent principal के लिए गुड रिसीव करता है और उसको मूव करता है, तो जब वो रिसीव कर रहा है, यहाँ पे फर्दर इनवॉइस पॉइंट मैंने टच नहीं किया, तो जब गुड्स रिसीव कर रहा है, जब रिसीव कर रहा है तब आपने ये देखना है इनवॉइसिंग किसके नाम पे ली जा रही है। तो जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो क्या इनवॉइसिंग एजेंट ने अपने नाम पे ली थी? अगर इनवॉइसिंग उन्होंने अपने नाम पे ली थी ओनली देन शेड्यूल 1 विल बी एप्लीकेबल। अगर उन्होंने इनवॉइसिंग आपके नाम पे नहीं ली और प्रिंसिपल के नाम पे ही ली है, in that case schedule 1 will not be applicable. That agent will be, they are just treating as a procurement agent, they are assisting you and facilitating you as far as GST is concerned. तो इसकी कॉमन पार्लेंस में नहीं जाना, सेम जैसे जॉब वर्कर के जीएसटी में अगर आप देखो तो कॉमन वर्ड तो जॉब वर्कर का यही होता है ना, जो पर्सन काम कर रहा है, बट वही जॉब वर्कर इन द जीएसटी जॉब वर्कर है इफ दे आर गेटिंग और डूइंग अ वर्क ऑफ अ रजिस्टर्ड प्रिंसिपल। सो सेम इज द केस, कॉमन पार्लेंस में आपने एजेंट ही देखना कि ही इज माय एजेंट।
एजेंट तब देखना है इनवॉइसिंग पैटर्न क्या है उसका। अगर इनवॉइसिंग पैटर्न इस केस में फॉल करता है, ओनली देन ही विल बी द एजेंट, अदरवाइज नो। सो नोटिफिकेशन ये 12/2017 की मैं पहले भी रेफरेंस आपको दे चुकी थी। उसमें क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी एग्रीकल्चर एजेंट जो हैं, अब उनपे ये हिट कर गया था। अगर आप शेड्यूल 1 की बात करें तो उन्होंने गुड्स रिसीव किए, अपने नाम पे इनवॉइसिंग ले रहे हैं, इवन देन दे आर not required to get compulsory registration, reason being they are exempted under notification 12/2017। यहाँ पे इन्होंने ये कहा बताया था कि क्योंकि ये जो कमीशन, ये जो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, ये सर्विस एग्जम्प्टेड सर्विसेज हैं, इवन दो दे आर एजेंट। और एक इसमें आपको चीज एक और एग्रीकल्चर में बता दूं, वीट और पैडी दे आर एग्जम्प्टेड, बट जो राइस की है इसकी जो कमीशन है आ रही है, ये क्या अगर कोई इसमें एजेंट डील करता है, क्या वो टैक्सेबल है, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है? तो जो राइस थे दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, और उसकी कमीशन एजेंट जो हैं दे आर लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन। उनकी राइस को एग्जम्प्ट किया है, मींस फार्मर अगर राइस दे रहे हैं, क्योंकि वो फार्मर एग्जम्प्टेड में एग्जम्पशन स्पेसिफिकली दे दी गई राइस को, तो इसलिए वो इसमें डील नहीं आ रहे। बट अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग एंड चार्जिंग, यू आर एक्टिंग एज अ कमीशन एजेंट, इन दैट केस ऑफ अ राइस यू आर लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन एंड नॉट इन द केस ऑफ पैडी एंड व्हीट। और एक और पॉइंट यहाँ पे आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, मैं कहती हूँ कि इसका मतलब ये सारे कमीशन एजेंट, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है किस चीज की, रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आरसीएम क्या हिट नहीं करेगा इन एजेंट के लिए? तो इसको भी सर्कुलर नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 45 में एग्जम्पशन दे दी गई थी कि अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डील करता है उसका फ्रेट भी एग्जम्प्ट कर दिया गया था। तो अगर इसको कंक्लूड करें तो आपके पास देखा जाए तो 3 सिचुएशन होंगी, या तो आप विद इन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट दे आर इंटरेस्टेड, या दे आर विद इन द सेम स्टेट। और जब मैं विद इन द सेम स्टेट की बात करती हूँ तो अब लॉ में, जीएसटी में एक वर्टिकल पॉइंट काम करता था कि अगर आपका वर्टिकल यहाँ पे है तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो, दैट हैज बीन डिलीटेड। तो यहाँ पे अब वर्टिकल लाइन होना जरूरी नहीं है। तो अगर आपकी विद इन सेम स्टेट अगर कोई दूसरी जगह पे एजेंट है तो 2 केसेस होंगे, या तो आपने उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन ली होगी या उसको अपनी एडिशनल प्लेस दिखाया होगा। अगर एडिशनल प्लेस दिखाया हुआ है तो वो दैट विल कम अंडर सेकंड सिनेरियो, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ली है तो थर्ड। अगर ये 3 सिनेरियो हैं तो कब कब ये रिलेशनशिप एज पर जीएसटी होगा प्रिंसिपल एजेंट का? एप्लीकेबिलिटी शेड्यूल 1 की लगेगी और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो आप ये देखो, द क्रक्स इज ऑलवेज द आंसर विल बी यस if the invoicing is in the name of agent, and if the invoicing is in the name of the principal, the 3 question that pop up in your mind कि हम इनके एजेंट हैं कि नहीं है, शेड्यूल 1 लगता है कि नहीं लगता, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी है कि नहीं लगनी है, स्ट्रेट अवे आंसर इज नो। इतना कंफ्यूज होने की हमें जरूरत ही नहीं है कि वो इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट है, कि हमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ली है कि एडिशनल पेज दिखा है। वी हैव टू take into consideration the invoicing pattern only. So now coming to the valuation rule. Valuation rule, what they say? Valuation rule simply said, क्योंकि अभी हमें सबको पता है कंसिडरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वैल्यूएशन कम इनटू द पिक्चर, और जीएसटी लगना है तो कौन सी वैल्यू पे लगेगा? तो सेक्शन 20 एज पर रूल 29 will simply say कि जब भी ट्रांसफर होगी तो वैल्यूएशन विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। तो ऑप्शन दे दी है सप्लायर को, या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइव गुड्स बाय द एजेंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन। सो इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो आपने 2 रेट देखने हैं, पहला ओपन मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। अगर एग्जांपल मैं दूं तो एक चीज की ओपन मार्केट वैल्यू थी, यहाँ पे आपने ग्राउंडनट सप्लाई कर रहे हैं अपने एजेंट को,
उस ग्राउंडनट की ओपन मार्केट वैल्यू जो थी दैट इज 4550. एंड सेकेंड इज, अगर आप चाहें, क्योंकि वहां पे लिखा था एट द ऑप्शन, तो आपकी जब ऑप्शन आ जाती है दैट इज गुड सोल्ड बाय द एजेंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर, तो यहाँ पे ये भी चीज याद रख लेना, दे आर टेकिंग, जब ये प्राइस लेना है 90% जिसका करना है दैट इज फॉर द अनरिलेटेड कस्टमर, तो यहाँ पे 90% ऑफ 5000 विल बी 4500, तो डेफिनेटली आई विल, व्हेन आई एम मूविंग द गुड्स, तो वैल्यूएशन क्या लगेगी 4500. And now the third one is turnover, aggregate turnover. वैसे जीएसटी में देखा जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर की रेलेवेंस कहाँ पे है, कहाँ हिट करती है, तो एग्रीगेट टर्नओवर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग द जीएसटी में जब रजिस्ट्रेशन कराना है सेक्शन 22 में जब बात की जाती है रजिस्ट्रेशन की, एंड दे टॉक अबाउट योर एग्रीगेट टर्नओवर, जो 20 लाख और 10 लाख की लिमिट देखी जाती है, एग्रीगेट टर्नओवर की बात की जाती है. और एग्रीगेट में इन द केस ऑफ ब्रांचेस आपको पता है, इवन व्हेन यू ट्रांसफरिंग द गुड्स टू योर ब्रांच that will be club, and this is the case, same case in the case of agent also. आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में जो आपने गुड्स एजेंट को सप्लाई किए हैं वो भी, और ये चीज जीएसटी फ्लायर के एफएक्यूज में दे हैव क्लियर्ड इट, कि आज मैं आपको 1 लाख के गुड सेल कर रही हूँ एंड फर्दर आपने 1,10,000 के सेल किए हैं, तो माय टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर विल बी 2,10,000. बाद में रिकंसिलिएशन शो करके नो डाउट कि दैट विल बी टेकन एज इन द इनकम टैक्स, पीएनएल में कैसे जाएगी डिफरेंट है, बट मैं एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस की बात कर रही हूँ, तो जो भी आप एजेंट की टर्नओवर भी होती है दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर. नाउ स्पेशल प्रोविजंस इसके, अगर आप एजेंट हो तो कहाँ पे पूरे एक्ट में दी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग रूल 56 इज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 35 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको इतना बता दूं इसकी, अगर आपके अकाउंट्स रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है तो आपको इसके लिए भी पेनल्टीज लेवी होती हैं. तो क्या मेंटेन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी हैविंग ऑथराइजेशन लेटर, देन द गुड्स डिटेल ऑफ पर्टिकुलर्स की आपको कितनी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी मिली थी जो आपने गुड्स रिसीव किए थे, देन कितने आपने डिस्क्रिप्शन वाइज उसकी वैल्यू और क्वांटिटी वाइज लिखना है, जितने गुड्स आपने सप्लाई किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एंड डिटेल्स ऑफ द अकाउंट फर्निश्ड टू द एवरी प्रिंसिपल. एवरी प्रिंसिपल का मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक मेरे सोल एजेंट ही हैं, कैन बी एजेंट ऑफ एन नंबर ऑफ प्रिंसिपल. आपने देखा ही है ऑटोमोबाइल में अगर हम चले जाएं, कहीं पे भी डीलरशिप में चले जाएं तो उन्होंने 3-4 जनों की डीलरशिप की होती है. एंड द टैक्स पेड, दीज आर द अनदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एवरी एजेंट हैव टू मेंटेन. लायबिलिटी, एजेंट के रिगार्डिंग क्या लायबिलिटी सेक्शन 86 में बताई गई है. Where an agent supply or receive any taxable goods on behalf of his principal, such agent has his principal jointly and severally. हमें सबको बताइए jointly and severally है, यहाँ पे क्यों वर्ड बताया इन्होंने जी, जब भी कभी प्रिंसिपल एजेंट का आता है तो ये jointly लिख दिया था, severally वर्ड क्यों लिखा, इसका क्या रेलेवेंस है. सेवरली वर्ड इसलिए लिखा, जब मैंने आपसे बात की प्रिंसिपल और एजेंट, सर्कुलर 57 में इन्होंने रेफरेंस भी दी ना, तो दे टॉक अबाउट सेक्शन 182 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी बात नहीं लिखी हुई. माइनर के लिए जरूर है कि माइनर बंदा एजेंट नहीं हो सकता, बट प्रिंसिपल के लिए ऐसी कोई चीज नहीं कही गई. It can be concluded कि minor can also be a principal. That's why if a minor is a principal, in that case agent will be severally liable. तो यहाँ पे relevance jointly और severally लिखने का ये था law में, they want to cover that principal also when they are minor. So liability in case of an agent of a minor, section 91 of the CGST, they have clearly stated if a person act as an agent of a minor, तो प्रिंसिपल माइनर हो सकता है. यहाँ से हमें ये भी पता चल गया. और जब ये माइनर आप एक्ट करते हो तो सारी की सारी लायबिलिटीज फॉर द टैक्स, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द पेनल्टीज, दे ऑल विल बी recovered from the
agent and not from the principal. अब jointly और severally का यहाँ पे point और relevance you came into know. अब एक last food for thought कि लॉ को प्लेन रीडिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ने एक अपना लिखना मेरे को लगता है और छोड़ दिया है। वो क्या लिखना छोड़ा है? प्लेस ऑफ बिजनेस की जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 की डेफिनेशन है, यहाँ पे इन्होंने सी क्लॉज में कहा कि ये प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट शैल बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस। मेरे एजेंट की प्लेस भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस है। अगर जो मैंने 3 केस सुनाए थे, अगर उसको थोड़ा रिकॉल करें, अगर विद इन द स्टेट हूं, मेरा एजेंट है सेम स्टेट में, तो मैं अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर सकती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर इंटर स्टेट है, तो आप सबको पता है कि एडिशनल प्लेस इंटर स्टेट में ऐड ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे फूड फॉर थॉट में ये कहना चाहूंगी, बिकॉज लॉ मेकर ने ये चीज समझ नहीं आई, व्हाई दे हैव इंक्लूडेड अ प्लेस of every agent to be included in the place of business. So I hope I have cleared everything regarding principal and agent. Thank you very much. Thank you, Sonia ji, for spending time and explaining the concept of principal-agent relationship under GST in such a comprehensive manner. I'm sure all our viewers will be immensely benefited from this knowledge session. Thank you so all much. our viewers, if you find this session interesting and useful, do like the video and don't forget to subscribe to our YouTube channel CS Ansar for notification on all new videos and forthcoming webinars. Thank you for watching.